Good morning, everyone. Today we are going to start unit number 3. It is based on sequential circuits. It includes flip-flop, registers, and counters. So first, what is sequential logic circuits? There are two types of logic circuits in digital. First is combinational circuits, another is sequential circuits. Combinational circuits we have already discussed. In combinational circuits, output depends only on present state, present input. But in sequential circuit, it is not like that. So what is a sequential circuit? Sequential circuit consists of a combinational circuit with storage element that is connected as a feedback to a combinational circuits. Here we can see एक combinational circuit हमने लिया हुआ है, वहीं पे हमने एक feedback में हमने memory element को feedback किया हुआ है, और तो ये हमारा complete है sequential circuit. सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में अगर हम देखें, मैंने पहले ही बताया कॉम्बिनेशनल सर्किट के केस में इट ऑलवेज गिव्स द सेम आउटपुट फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट. मींस जो भी हमारा आउटपुट है वो ऑलवेज सेम रहेगा. अगर हम स्पेसिफिक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट हमेशा वही आना है, कुछ प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करना है. तो एग्जांपल्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के होते हैं हमारे एडर, सबट्रैक्टर, मक्स, डीमक्स, डिकोडर, एनकोडर. एंड सिक्वेंशियल सर्किट जो है, सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या करेगा, इट स्टोर इंफॉर्मेशन. ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट्स का बेसिक पर्पस ये है कि इट इज़ यूज फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन. तो इट स्टोर इंफॉर्मेशन. आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और स्टेट्स, and present input to a given input might produce different output depending on the stored information. It is useful for building memory element and state machine. So examples are of sequential circuits are flip-flop, shift registers, counter, state machines. Combinational versus sequential circuit. Combinations in combinational circuit, output is a function of the present state or present input. We can say the combinational circuit is time independent logic, whereas a sequential circuit is time dependent. Output is a function of clock, present input and the previous state of the system. Second difference है, combinational circuit do not have the ability to store data. मैंने पहले भी बताया कि इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, ये डाटा को स्टोर नहीं करता है. बट sequential circuit have memory to store the present state that is sent as control input for the next state. In combinational circuit, it does not require any feedback. यहाँ पे कोई feedback नहीं होता है, but in sequential circuit there is a feedback. Combinational circuit use mainly for arithmetic and boolean functions. Boolean operation and arithmetic operations में हम इसका यूज़ करते हैं. Whereas a sequential circuit is used for storing data. So we can say it can be used in RAM. Combinational circuits में जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं दे आर एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के होते हैं लॉजिक गेट्स.
but in sequential circuit, flip-flops are the elementary building blocks. Combinational circuit is independent of clock, therefore do not require triggering to operate, but sequential circuit requires clock. These are clock circuit, they require triggering. ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें पता ही हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एग्जाम्पल्स हैं एडर, सबट्रैक्टर, फिर आपका एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, डिकोडर हो गया, एनकोडर हो गया. ठीक है, और हमें सिक्वेंशियल सर्किट का पता ही है, काउंटर. नेक्स्ट है लैच. A latch is a fundamental component of the data storage. A single latch can store one bit of the data. लैच को हम यहाँ पे एक बेसिक स्टोरेज एलिमेंट मान के चल सकते हैं. लैच के थ्रू हम फ्लिप फ्लॉप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. 2 types of latch are there, NAND latch and NOR type latch. ठीक है, तो सबसे पहला जो लैच है हमारा, हम इसको SR लैच भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 इनपुट्स, हम लैच में हमेशा हम 2 इनपुट लेते हैं और 2 आउटपुट्स लेते हैं. S एंड R सेट एंड रीसेट इनपुट्स होते हैं. Q एंड Q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ये आउटपुट हैं हमारे. सबसे पहले ये नॉर का लैच है, नॉर लैच है. इसमें हमने नॉर गेट 1 में हमने रीसेट इनपुट अप्लाई किया है, नॉर गेट 2 में हमने सेट इनपुट अप्लाई किया है. नॉर गेट 1 का आउटपुट है Q, नॉर गेट 2 का आउटपुट होगा Q बार. तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, अगर हम सेट पे 1 और रीसेट पे 0 अप्लाई करें, वी नो नॉर गेट है. नॉर गेट में एक भी इनपुट अगर हाई है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए. ठीक है, अगर हमने सेट पे 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरा इस 2 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, और ये 0 यहाँ से देखें हम फीडबैक होके यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये 0 और 0 हमें आउटपुट मिलेगा 1. तो जब भी हम सेट इनपुट को हाई कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें 1. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैच है ये एक तरह का क्रॉस कपल्ड कनेक्शन हो रहा है. हम एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, उसी तरह मतलब दोनों गेट्स जो हैं उनके आउटपुट को हम नेक्स्ट गेट के इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं. क्रॉस कपल्ड कनेक्शन होता है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप या लैचेस में. तो अभी हम सिर्फ लैच पढ़ रहे हैं. लैच में अगर हम एक्स्ट्रा सर्किटरी और ऐड कर दें तो हमारा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा. ठीक है, तो हमने देखा कि 2 इनपुट हैं हमारे, सेट और रीसेट. तो हमें पहली चीज़ यहाँ से ये समझ में आई कि जब भी हम सेट इनपुट को हाई कर रहे हैं उस केस में हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है. ठीक है, मतलब इस कंडीशन को मैं बोल सकती हूँ सेट कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे अपन स्टेट्स देख लेते हैं. यहाँ पे हम देख लेंगे कंडीशन कौन सी ऑकर हो रही है. तो इस केस में हमारी ऑकर होगी सेट कंडीशन. नेक्स्ट केस हो जाएगा मेरा जब हमने दोनों पे 0 अप्लाई किया. जब हमने दोनों पे 0 अप्लाई किया, हम उस केस में हमें थोड़ा सा वैल्यू कंसिडर करके चलनी पड़ेगी. देखो, जब हमने सेट पे 1 और रीसेट पे 0 रखा था तब हमारे आउटपुट्स क्या थे, 1 एंड 0 थे. ठीक है, तो अब हमें प्रेजेंट स्टेट ये मान के चलनी पड़ेगी कि पहले इनकी जो स्टेट थी 1 एंड 0 है. अब नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी वो हमें नए इनपुट अप्लाई करने के बाद पता पड़ेगा. तो अब हमने नए इनपुट अप्लाई कर दिए हैं R एंड S. तो अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से फीडबैक होके क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें अगर फीडबैक होके ये 1 वापस से फीडबैक होके 2 के इनपुट में आ रहा है, मतलब अगेन Q डैश जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा.
और ये 0 वापस से फीडबैक होके 1 में जा रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, तो 0 और 0 वापस से मुझे क्या मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। तो यहाँ इस केस में जब हम दोनों इनपुट 0 अप्लाई करें, S और R, जब हम दोनों पे 0 अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई भी चेंज ऑकर नहीं हो रहा है। जो हमारा पहले वैल्यू आई थी, पहले वाले केस में वैल्यू आई थी 1 एंड 0, नेक्स्ट केस में भी मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1 0 ही आ गई है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट स्टेट में हमने Q को 1 मान के चला तो भी हमारा 0 0 अप्लाई करने पे हमारा नो चेंज ऑकर हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन मेरी कहलाती है नो चेंज कंडीशन। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। पहला केस जब हमने सेट को हाई और रीसेट को लो रखा तो उस केस में मेरा आउटपुट सेट होता है। सेट होना मीन्स Q की वैल्यू हाई होना, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारी, जब हम दोनों इनपुट को 0 करके रख रहे हैं उस केस में नो चेंज की कंडीशन ऑकर हो रही है। नो चेंज हम कैसे बोल सकते हैं, जो भी हमारा प्रेजेंट स्टेट पे आउटपुट रहा होगा वही हमें नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट केस है जब हमने सेट को 0 एंड रीसेट को 1 कर दिया, यहाँ 0 और यहाँ 1 कर दिया। अब 0 और 1 के केस में अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं R पे हमने 1 अप्लाई किया, मतलब नॉर गेट 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी इनपुट अगर हाई है किसी भी नॉर गेट में तो उसका आउटपुट हाई होना है। तो नॉर गेट 1 का आउटपुट हाई हो गया। अब यहाँ से 0 और 0 फीडबैक होके यहाँ से 0 आया तो 2 का आउटपुट मुझे मिला 1। तो जब R1 और सेट इनपुट 0 हम पुट कर रहे हैं, इस केस में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट Q0 एंड Q बार 1, ये वाला केस। तो इस केस में हम देखें जब भी हम सेट को 0 रीसेट को 1 कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट Q क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। Q 0 हो रहा है मतलब रीसेट है, ठीक है। Q 1 होता है मतलब सेट है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ था, सेट हुआ था, और अभी क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रीसेट कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहीं से देखें, अब हमने फिर से अगर 0 0 अप्लाई कर दें इनपुट पे, ठीक है। अब मेरे इनपुट फिर से अगर 0 0 हो जाएं तो प्रेजेंट स्टेट तो यही रहनी है, आउटपुट की Q और Q बार की वैल्यू 0 और 1 ही रहनी है, ठीक है। तो इस केस में हम देखें तो अभी भी फीडबैक होके 1 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी इनपुट अगर हाई हो गया है, R पे मैंने 0 अप्लाई किया, S पे 0 अप्लाई किया, Q डैश से फीडबैक होके R में जा रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है। तो एक भी इनपुट हाई है तो मतलब आउटपुट मेरा क्या आना है, 0 आना है। नेक्स्ट ये 0 फीडबैक होके 2 में आ रहा है, ठीक है। तो 0 और 0 यहाँ पे मुझे फिर से क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। 0 0 अप्लाई करने पे फिर से मेरे पास कौन सा केस ऑकर हो रहा है, नो चेंज की कंडीशन हमारे पास ऑकर होगी, ठीक है। 0 0 हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हमेशा नो चेंज ऑकर होगा, ठीक है। 0 0 अप्लाई करने पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी उसके पहले वाली कंडीशन में आउटपुट रहेगा वही आउटपुट हमें 0 0 पे मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन मेरी कहलाएगी नो चेंज कंडीशन। लास्ट केस है हमारा जब हमने दोनों इनपुट को हाई कर दिया। अब हमें पता है, वी नो, नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट, एटलीस्ट 1 इनपुट भी हाई है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों नॉर गेट के एक एक इनपुट को हाई कर दिया तो मतलब Q भी 0 हो गया और Q डैश भी 0 हो गया। ये एक इनवैलिड इनडिटर्मिनेट कंडीशन होती है, ये कंडीशन ऑकर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Q और Q बार जो हैं ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन ऑकर नहीं होना चाहिए हमारे फ्लिप फ्लॉप या लैच में। तो ये एक इनवैलिड कंडीशन है, ठीक है। तो इसको हमें आगे जाके सॉल्व करना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर SR लैच। अब हमें देखना है, ये हमने नॉर लैच देखा, अब हमें देखना है नैंड लैच। नैंड लैच के केस में हमें देखना होगा, नैंड लैच के केस में 2 नैंड गेट हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी क्रॉस कपलिंग कर रहे हैं जैसे हम इसमें करते थे।
अब थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया है कि हम वहाँ पे क्या करते थे, आर जहाँ पे हम आर अप्लाई करते थे उस वाले आउटपुट से हम क्यू लेते थे, बट यहाँ पे हम सेट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं पहले वाले में और हमें वहाँ से क्यू मिल रहा है। सेकेंड वाले नैंड गेट में हम रीसेट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और हमें यहाँ से क्यू डैश मिल रहा है। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखें थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी हम सेट को 1 और रीसेट को 0 करके चलें। अब नैंड के केस में क्या होगा, एक भी इनपुट अगर लो है नैंड में तो आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट हाई हो जाना है, ठीक है। तो रीसेट इनपुट अगर 0 और सेट इनपुट 1 है तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा 2 का नैंड गेट 2 का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी फीडबैक होके यहाँ गया और ये 1 1 मिलके मुझे यहाँ पे क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। तो जब मैं सेट पे 1 और रीसेट पे 0 अप्लाई करूँगी इस केस में, तो मेरा आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 0 एंड 1। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे 1 और 1 अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब भी हम 1 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमेशा हमें नो चेंज की कंडीशन मिलेगी। जब भी हम 1 1 अप्लाई करेंगे हमें यहाँ पे नो चेंज की कंडीशन मिलेगी। अभी देखो जो भी प्रेजेंट स्टेट है वो आउटपुट पे यही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से फीडबैक होके मुझे मिल रहा है 0। अगर एक भी 0 है तो आउटपुट वापस से मुझे क्यू डैश 1 मिला और ये 1 यहाँ आया तो 1 और 1 वापस से मुझे 0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम नैंड लैच की बात कर रहे हैं तो नैंड लैच में जब हम एस पे हाई अप्लाई कर रहे थे तो उस केस में हमें यहाँ पे देखिए 0 1 मिला, ठीक है। जब हमने 1 1 अप्लाई किया यहाँ पे अब नो चेंज की कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, जब हम 1 1 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्म में क्या होता था, जब हम 0 0 अप्लाई करते थे तब हमें नो चेंज की कंडीशन मिलती थी। यहाँ पे अब हमें 1 1 के केस में नो चेंज की कंडीशन मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा 0 और 1। जब हम 0 एंड 1 अप्लाई करें, 0 और 1 जब हम अप्लाई करेंगे तो इस केस में Q की वैल्यू 1 हो गई है और यहाँ से देखें हम फीडबैक होके 1 1 मुझे 0 मिला, ठीक है। तो 1 0 मिला। अब हम इसमें ही 1 1 अप्लाई कर दें इनपुट को। अब हम 1 1 अप्लाई करेंगे तो वापस से मुझे 1 0 मिलना चाहिए, क्योंकि नैंड के केस में 1 1 जब हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में आउटपुट पे नो चेंज की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जब मैंने 1 1 अप्लाई किया यहाँ से फीडबैक होके 0 आ रहा था, तो इसका आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो गया, Q1, ठीक है। तो वापस से मुझे इस केस में जब हम 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, नो चेंज, ठीक है। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट एक और इसमें ये कंडीशन है, जब हम दोनों को लो कर दें, ठीक है। जैसे हमने नॉर्म में दोनों को हाई किया था तो आउटपुट सेम हो गए थे। यहाँ पे हम जब दोनों को सेम कर दें, 0 कर दें, तो दोनों के आउटपुट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो इसमें इनवैलिड कंडीशन कहलाएगी ये, ठीक है। दिस इज इनवैलिड कंडीशन व्हेन Q एंड QR आर इक्वल टू 1, दोनों सेम हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हम क्या करें, हम हमारे लैच में एक एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग इनपुट ऐड कर दें, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप इज़ ऑल्सो अ सिक्वेंशियल सर्किट विच हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स, ठीक है। जो भी सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं हमारी उनमें हमेशा 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, दैट कैन बी हाई और लो, ठीक है। या तो 1 होगा या 0 होगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ मेमोरी, एक बिट को ये स्टोर कर सकता है, या तो 1 भी स्टोर कर सकते हैं हम इसमें और 0 भी स्टोर कर सकते हैं, बट एक फ्लिप फ्लॉप को हम यूज़ करेंगे एक बिट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा मेमोरी स्टोर कराना है तो उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें यूज़ करना होगा बिट के अकॉर्डिंग। These are types of flip-flops: SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, D flip-flop, and master slave flip-flop. First is SR flip-flop. SR flip-flops are also known as SR latch. It can be considered
कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, इसको हम SR लैच भी बोल सकते हैं। अगर SR लैच में हम थोड़ा सा एक क्लॉक ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा गेटेड SR लैच हम या गेटेड SR फ्लिप फ्लॉप हम इसको बोल सकते हैं। द सिंपल फ्लिप फ्लॉप इज़ बेसिकली अ 1 बिट मेमोरी डिवाइस, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट हैज़ 2 इनपुट, सेट एंड रीसेट। सेट का मतलब होगा जो डिवाइस को, जो हमारे आउटपुट को क्या कर दे, 1 कर दे, Q को 1 कर दे। एंड रीसेट होगा, रीसेट का मतलब क्या होगा, जो हमारे आउटपुट को 0 कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम नैंड लैच का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम क्लॉक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्लॉक हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे नैंड लैच के साथ हमने यहाँ पे 2 नैंड गेट और यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 नैंड गेट और यूज़ किए हैं। तो इन दोनों नैंड गेट के थ्रू हम इनपुट अप्लाई करेंगे और इनके आउटपुट को हम हमारे लैच में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला केस, ये ई जो हमने लिया है ये है मेरा क्लॉक। ठीक है, ये जो है ई, दिस इज़ क्लॉक। तो जब हमारा क्लॉक एक्टिव है उस केस में हम पहला केस ले लें S0 R0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब कुछ कंसीडर करके रखना पड़ेगा। देखो 0 0 है तो क्लॉक अगर इस टाइम पे क्लॉक अगर एक्टिव भी है तो क्या होगा, अगर इनपुट हमारे 0 हैं और क्लॉक भी एक्टिव है तो मतलब नैंड गेट के आउटपुट तो हाई हो ही जाना है। ठीक है, अब हमें ये कंसिडर करना होगा कि ये जो Q है, Q पे हम अज्यूम करें कि यहाँ पे Q की वैल्यू पहले 0 होगी, तो यहाँ पे फीडबैक होके यहाँ मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो गेट है इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें। जो 2 का आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 एंड 1 है नैंड गेट में, तो 2 का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ये 1 फीडबैक होके यहाँ आ रहा है, तो 1 और 1 पहले वाले नैंड गेट में हमें नैंड गेट 1 का आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब पहले भी 0 था और अभी भी 0 मिल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट पे भी मैं 0 मान के चल रही थी और इसका जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है वो भी मुझे क्या मिल रहा है, क्लॉक अप्लाई करने के बाद मुझे 0 ही मिल रहा है। मतलब ये कंडीशन में हमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने QN भी यूज़ किया है, QN+1 भी यूज़ किया है। अगर हम बोल रहे हैं QN तो इट मीन्स प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, अगर हम बोलें QN+1 तो उसका मतलब क्या होगा, QN+1 अगर हम बोलें, नेक्स्ट है अगर हम अगर हम QN बोले तो मैंने बताया QN इज़ प्रेजेंट स्टेट एंड QN+1 अगर लिखा है तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि फ्लिप फ्लॉप या सिक्वेंशियल सर्किट में हम ये वर्ड बार बार यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट का मतलब हो जाएगा कि बिफोर अप्लाइंग क्लॉक जो भी आउटपुट, मतलब न्यू इनपुट अप्लाई करने के पहले वाला जो आउटपुट है, पहले वाली जो स्टेट है, हम उसको प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं। और इनपुट अप्लाई करके जो क्लॉक के बाद हमें जो मिलेगा, क्लॉक अप्लाई करके इनपुट हमने नए अप्लाई किए हैं उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा हम उसको नेक्स्ट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 0 और 0 अप्लाई किए तो वापस से मुझे हमारा प्रीवियस आउटपुट ही मिला। मतलब प्रेजेंट स्टेट पे जो भी कंडीशन रही थी वही नेक्स्ट स्टेट पे मिली। तो ये वाला केस मेरा कहलाता है नो चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है जब मैंने सेट पे 0 रीसेट पे 1 अप्लाई किया। तो जब सेट पे 0 अप्लाई किया तो इसका आउटपुट हो गया हाई और क्लॉक मान लो हम इस टाइम पे हाई लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉक भी 1 और ये 1, तो यहाँ पे मुझे मिला 0। अब यहाँ पे हम इसको भी हमें थोड़ा सा मान के चलना पड़ेगा। 0 ले लें अगर हम यहाँ पे, तो इसका ये वाला इनपुट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 और 0 क्यू बार हो गए 1। यहाँ से 1 और 1 फीडबैक होके गया 1, तो 1 और 1 मुझे वापस से क्या मिला, 0।
ठीक है। तो इस केस में जब हम सेट पे 0 और रीसेट पे 1 अप्लाई करें तो Qn+1 नेक्स्ट स्टेट जो है आउटपुट हमारा वो हमेशा हमारा 0 रहेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। इसको हम अभी मैंने प्रेजेंट स्टेट पे 0 मान के चली थी, इसको मैं 1 से भी बताती हूँ। देखो हमने जब 0 और 1 दिया और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्यू की प्रीवियस वैल्यू जो रही होगी प्रेजेंट स्टेट पे वो 1 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लॉक को भी हाई मान के चल रहे हैं, तो क्लॉक हाई है तो जो हमारा रीसेट इनपुट जहाँ पे इस नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्योंकि हमने प्रेजेंट स्टेट पे क्यू की वैल्यू को क्या अज्यूम किया है 1 अज्यूम किया है, तो फीडबैक हो के यहाँ बना रहा है। ठीक है, तो 1 और 0 जब हमने नैंड गेट में अप्लाई किया तो नैंड गेट का आउटपुट हो गया हाई। ठीक है, और ये 1 मैंने यहाँ अप्लाई किया, ये 1 जो फीडबैक हो के आया मैंने इसको इधर अप्लाई किया, तो 1 और 1 मुझे यहाँ पे अब क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 1 नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो फिर से मुझे कौन सा केस मिल रहा है 0 एंड 1 का। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया, जब भी हम रीसेट पे हाई अप्लाई कर रहे हैं, जब भी हम रीसेट पे 1 अप्लाई करेंगे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा रीसेट हो जाएगा। मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, आउटपुट मेरा रीसेट हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन को हम बोलेंगे रीसेट कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन मेरी कहलाएगी रीसेट कंडीशन। नेक्स्ट केस है मेरा जब मैंने 1 और 0 अप्लाई किया। जब भी हम 1 और 0 अप्लाई करेंगे तो इस केस में अब देखो हमारा आउटपुट सेट की कंडीशन ऑकर होना चाहिए। मैंने 1 और 0 अप्लाई किया, इस टाइम पे क्लॉक भी मेरी हाई है। ठीक है, तो जब मैंने 1 1 अप्लाई किया तो ये वाले इस नैंड गेट का आउटपुट हो गया 0 और यहाँ पे रीसेट पे क्योंकि 0 है तो ये वाले नैंड गेट का आउटपुट हो गया 1। ठीक है, अब मैं अगर अज्यूम करके चलूँ कि मेरा क्यू की वैल्यू 0 है, प्रेजेंट स्टेट वैल्यू क्यू की मान लो 0 है ना, तो ये 0 यहाँ से फीडबैक होके मुझे मिल रहा है, तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 फीडबैक होके ऊपर भी गया, तो 0 और 1 नैंड गेट में हमने अप्लाई किया, तो ये वाले नैंड गेट का आउटपुट अब मेरा क्या हो गया, ये चेंज होके क्या हो गया 1 हो गया। अब ये 0 नहीं है, ये 1 हो गया है। ठीक है, तो जब मैंने 1 और 0 अप्लाई किया तो मेरा क्यू की वैल्यू 1 हो गई है और क्यू बार की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी 0। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 1 मिलके मुझे यहाँ पे 0 देंगे। तो इस केस में जब हम सेट पे 1 और रीसेट पे 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट हमेशा सेट होगा। सेट इनपुट को हाई किया है तो क्यू की वैल्यू सेट होगी, क्यू की वैल्यू हाई होगी। लास्ट केस 1 1 का केस है जिसमें हम दोनों पे 1 1 अप्लाई करेंगे। क्लॉक भी इस केस में हाई है हमारी, तो क्लॉक भी एक्टिव है हमारी, तो हमारा दोनों नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, दोनों 0 हो गए। फिर से नैंड गेट में अगर एक भी 0 मिला तो दोनों आउटपुट क्या हो जाएंगे हाई हो जाएंगे। तो दिस इज़ इनडिटर्मिनेट स्टेट, इनडिटर्मिनेट और इनवैलिड स्टेट। ठीक है, तो ऐसी 4 स्टेट हो गई हैं हमारी एसआर फ्लिप फ्लॉप में। 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 0 0 जब हम अप्लाई करते हैं तो नो चेंज, जब हम सेट पे 0 रीसेट पे 1 अप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट जो भी आएगा, हमारी जो कंडीशन ऑकर होगी वो रीसेट कंडीशन होगी। जब सेट पे 1 रीसेट पे 0 किया तो हमारा आउटपुट सेट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। जब हम दोनों को हाई कर रहे हैं इनपुट को, सेट और रीसेट को, उस केस में इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड कंडीशन हमारी ऑकर होती है। नेक्स्ट है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप इज़ अ मॉडिफाइड सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप विद द एडिशन ऑफ एन इन्वर्टर टू प्रिवेंट एस एंड आर इनपुट फ्रॉम बीइंग एट द सेम लॉजिक लेवल। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने एक नॉट गेट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक सिंपल एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या था, 2 इनपुट्स से 1 टू सेट द आउटपुट एंड 1 टू रीसेट द आउटपुट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वी हैव कनेक्टेड अ इन्वर्टर और नॉट गेट।
तो यहाँ पे इससे क्या होगा, दिस सिंगल इनपुट इज़, मतलब हमने एक नॉट गेट अप्लाई कर दिया जो हम रीसेट में अप्लाई कर देंगे और एक्चुअल वैल्यू को हम सेट में अप्लाई कर देंगे, तो हमारा इनपुट जॉइन होके क्या हो गया, एक ही हो गया। ये देखिए जॉइन होके क्या हो गया, एक ही हो गया। तो इस तरह के हम जो सिंगल इनपुट देंगे उसको हम डाटा इनपुट बोलते हैं। ठीक है, ये सेट था, ये था रीसेट। तो मैंने एक इनपुट लिया D, उसको अप्लाई कर दिया S में और उसमें एक नॉट गेट लगा के मैंने अप्लाई कर दिया R में। तो बस एक इतना सा चेंज है, बाकी पूरा सर्किट एज इट इज़ है RS फ्लिप फ्लॉप के जैसा। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एक सिंगल इनपुट दिया है, तो अब हमारे जो टेबल बनेगी, हमारी जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमें कौन सा केस देखना है, जब भी हमारी क्लॉक 0 होगी तो उस केस में तो कोई चेंज ऑकर नहीं होता है। ठीक है, जब भी हमारी क्लॉक एक्टिव नहीं है तो कोई चेंज ऑकर नहीं होता है। चेंज तभी आएगा जब क्लॉक एक्टिव होगी। ठीक है, अब हमने क्लॉक को एक्टिव कर दिया, हाई कर दिया। इस केस में अब देखें हम, जब हम D पे 0 अप्लाई करें, ठीक है, जब हम D पे 0 अप्लाई करें, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी हम अप्लाई करेंगे वही हमें आउटपुट पे मिलेगा, चाहे प्रेजेंट स्टेट पे 0 हो या 1 हो। बट अगर हमने D पे 0 अप्लाई किया है तो Q भी मेरा 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पे D पे 0 अप्लाई कर दिया, इस पे 0 अप्लाई किया तो मतलब सेट पे 0 जा रहा है और रीसेट पे 1 जा रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। क्लियर है, जब हमने ऐसा किया तो सेट पे 0 गया और रीसेट पे 1 गया। तो जब भी हमने सेट पे 0 किया तो एक भी इनपुट 0 है ये वाले नैंड गेट में, तो इसका आउटपुट मेरा हो गया हाई। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक भी हाई थी और रीसेट इनपुट भी हाई हो गया, तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट हो गया 0। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे क्यू बार क्या मिलेगा, यहाँ पे क्योंकि 0 है सेकंड वाले नैंड गेट में, तो इस क्यू बार की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये 1 फीडबैक होके ऊपर गया, तो 1 और 1 मुझे क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, तो मैंने इनपुट क्या अप्लाई किया था, 0, आउटपुट भी मुझे मिला 0। अब इसको मैं प्रेजेंट स्टेट पे 1 अज्यूम करके भी बता देती हूँ। ठीक है, अब दूसरा केस मेरा क्या है, जब मैंने डाटा इनपुट को हाई ले लिया, जब डाटा इनपुट को हाई लिया मतलब सेट पे क्या गया, 1 गया और रीसेट पे क्या जाएगा, 0। ठीक है, रीसेट पे 0 गया मतलब इसका आउटपुट हाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक भी हाई थी, सेट इनपुट भी हाई है, तो 1 1, यहाँ पे मुझे मिला 0, इसका मिला मुझे 1। ठीक है, तो अब इस नैंड गेट का आउटपुट, इस नैंड गेट पे एक भी इनपुट लो आया है पहले वाले पे, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, हाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 अप्लाई किया तो आउटपुट पे भी हमें क्या मिला, 1 मिला। तो डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक ही ये है कि जो भी हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे, जो भी डाटा इनपुट पे होगा, डी इनपुट पे होगा, एज इट इज़ हमें आउटपुट पे मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट पे हम उसको क्यू की वैल्यू को 0 ले लें या क्यू की वैल्यू को 1 ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हमेशा आउटपुट इनपुट की जैसा ही आएगा। तो इस यहाँ पे हमारी वो वाली कंडीशन बच गई है जो हमारा आउटपुट इनपुट सेम हो जाता था, तो यहाँ पे सेम इनपुट वाली कंडीशन ऑकर ही नहीं होगी। नेक्स्ट है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप। इन ऑर्डर टू ओवरकम इनवैलिड कंडीशन ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप, जो हम 1 1 पे हमारे आउटपुट सेम हो जाते थे, उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। द सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इज़ सेम एज फॉर द आरएस फ्लिप फ्लॉप with the same reset and set input. The difference is that the JK flip-flop does not has the invalid input state of the RS flip-flop. ये कैसे होगा? यहाँ पे हम JK flip-flop में एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं आउटपुट से हम इनपुट की तरफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, फीडबैक दे दिया, क्यू बार को कनेक्ट कर दिया जे के ये वाले एंड गेट के साथ और क्यू को कनेक्ट कर दिया इस एंड गेट के साथ।
जहाँ पे हमने के अप्लाई किया उस एंड गेट के साथ हमने, उस नैंड गेट के साथ हमने क्यू को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस फीडबैक की वजह से एक डिफरेंस आता है, वो होता है टॉगलिंग का। ठीक है, बाकी सारी स्टेट सेम रहेंगी, बाकी सब जगह पे सेम रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज आएगा जब हम 1 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 0 0 अप्लाई किया, जब हम यहाँ पे 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे ये दोनों 1 1 हो गए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब भी हम 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो अगर क्यू की वैल्यू 0 थी तो हमें नेक्स्ट पे भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू अगर 0 थी तो हमें फिर से 0 ही मिलना है। देखो, क्योंकि यहाँ पे क्यू 0 था तो ये फीडबैक हो के यहाँ पे भी आ रहा है, तो 0 और 1, तो यहाँ पे मुझे क्यू बार मिला 1, और यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या मिला? 0। ठीक है, तो जब भी हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो मेरा ये वाला केस हो गया नो चेंज। 0 0 का एक केस और है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट स्टेट लिया, ये नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पे n+1 नहीं लिखा है, t+1 लिखा है, बट इट इज़ ऑल्सो द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें कि अगर हम प्रेजेंट स्टेट को 1 अज्यूम करके चलें, उस केस में भी हमारा आउटपुट हमेशा सेम आएगा। 0 0 जैसे हमने लिया था तो ये दोनों हमारे 1 1 हो गए। ठीक है, ये क्योंकि 1 था तो ये 1 फीडबैक होके यहाँ आया, तो 1 1 मुझे यहाँ पे मिला 0, और यहाँ पे अगेन मुझे क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो फिर से हमें 0 0 के केस में हमेशा क्या मिलेगा? नो चेंज का केस। तो हमने 0 0 के 2 केस ले लिए हैं। जब एक बार मैंने प्रेजेंट स्टेट को 0 अज्यूम किया, नेक्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंट स्टेट को 1 अज्यूम किया। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम 0 और 1 अप्लाई करें, ये वाली कंडीशन। जब हम इस पे 0 और इस पे 1 अप्लाई करें तो सारा जो कंडीशन है यहाँ पे वो बिल्कुल RS फ्लिप फ्लॉप की ही तरह हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखें, जब मैंने 0 और 1 अप्लाई किया तो ये जो J है ये S इनपुट और K R इनपुट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हम 0 और 1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये आउटपुट हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा रीसेट। और जब हम ये वाले केस में भी देख लें, चाहे हम प्रेजेंट स्टेट पे 0 अज्यूम कर लें या प्रेजेंट स्टेट पे 1 अज्यूम कर लें, बट आउटपुट हमेशा हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब ये वाला केस हमेशा मेरा क्या कहलाएगा? रीसेट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम J को 1 और K को 0 कर लें, सेट ये हमारा, क्योंकि J कैसा है? S और K R की जैसा है। ठीक है, तो जब हम 1 0 की केस अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा आउटपुट होगा सेट। तो ये कौन सी कंडीशन ऑकर हो रही है? सेट कंडीशन, क्योंकि जब हम सेट J पे 1 K पे 0 अप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें हाई इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, सेट मिलेगी कंडीशन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारी अभी तक की सेम हो गई। RS फ्लिप फ्लॉप में भी ऐसे होता था, 0 0 0 1 और 1 0 में सेम केसेस ऑकर हो रहे थे, बट चेंज होता था RS फ्लिप फ्लॉप में 1 1 जब हम अप्लाई करते थे उस केस में हमारा आउटपुट इनवैलिड हो जाता था, इनडिटर्मिनेट हो जाता था। तो यहाँ पे हमें उस केस को देखना है जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं तो ये दोनों हमारे हो गए 0 0। ठीक है, ये दोनों हमारे 0 0 हो गए। अब हम यहाँ पे 0 अज्यूम कर लें। ठीक है, क्यू को अगर 0 अज्यूम कर लें तो यहाँ से फीडबैक होके 0 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिला 1, और ये 1 फीडबैक होके यहाँ गया, तो 1 एंड 0 सॉरी, देखिए, जब भी हम 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे ये दोनों हो गए 0 0,
ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अब हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमारा हमेशा टॉगल करेगा। ठीक है, अगर हम इसको 0 अज्यूम करके चलेंगे तो इस केस में जब भी हम 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जब इसको 0 अज्यूम किया, ये दोनों केस मैंने एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, 0 अज्यूम करें या 1 अज्यूम करें तो हमारा टॉगल यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, जब हम 0 अज्यूम करेंगे तो ये आउटपुट हमारा Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए और ये 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको 1 अज्यूम करें ये 1 1 के केस में तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम टॉगल बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे थे तो हमें यहाँ 1 मिल गया, यहाँ पे 1 अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया। ठीक है, Q के साथ हमारा Q बार भी यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे इनवैलिड वाली कंडीशन ऑकर ही नहीं होती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन ऑकर होती है जिसको हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दोनों इनपुट एक टाइम पे हाई हैं, जब भी दोनों इनपुट एक टाइम पे हाई हैं, उस केस में जब भी यहाँ पे 1 1 है और क्लॉक उस टाइम पे एक्टिव है। ठीक है, क्लॉक एक्टिव है और J और K भी मेरे हाई हैं उस केस में, तो जब तक ये क्लॉक एक्टिव रहेगी तब तक मल्टीपल टाइम टॉगलिंग ऑकर होती रहेगी। टॉगलिंग मीन्स अपनी वैल्यू को चेंज करना। तो जब तक हमारे J और K हाई हैं और उतने ड्यूरेशन तक अगर हमें क्लॉक हाई मिलती रहेगी तो J जो हमारा Q है, जो हमारा आउटपुट है, वो मल्टीपल टाइम टॉगल करता है, चेंज करता जाता है, 0 से 1 1 से 0 1 से 0 0 1 ये होता जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है मेरी रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होता है कि जो भी हम टाइमिंग पल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम क्लॉक पल्स यूज़ कर रहे हैं, उस टाइमिंग पल्स पीरियड जो है वो क्या हो जाना चाहिए, जितना हम एज स्मॉल एज पॉसिबल रखें। तो वो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा होता है कि वी यूज़ मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हम नॉर्मल JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ ना करके हम मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें या फिर टाइमिंग पल्स का पीरियड एज स्मॉल एज पॉसिबल रखें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो मास्टर स्लैब करते हैं। नेक्स्ट है T फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। T फ्लिप फ्लॉप में हमने JK फ्लिप फ्लॉप से ही हम T फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। J और K को हम जॉइन करके एक इनपुट अप्लाई कर दें T। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने J और K को जॉइन कर दिया है, J और K को जॉइन करके एक ही इनपुट अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा सिंबल है T फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो T फ्लिप फ्लॉप का काम होता है टॉगल करना। टॉगल कब करता है, जब इसमें T इनपुट हम हाई करें। ठीक है, तो T स्टैंड्स फॉर टॉगल इन दिस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये मेरा है T फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे हमने देखिए क्या करा है, Q और Q डैश प्रेजेंट स्टेट में भी लिया और नेक्स्ट स्टेट में भी लिया। तो यहाँ पे जब भी हम 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो कोई चेंज ऑकर नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट पे 0 था तो नेक्स्ट पे भी मुझे 0 मिलेगा, प्रेजेंट पे 1 था तो नेक्स्ट पे भी मुझे 1 मिलेगा। तो 0 के केस में ये देखिए स्टार्टिंग के जो 2 केस हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखें अपन, तो 0 के केस में हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये हम अप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो यही कंडीशन ऑकर रहेगी, नो चेंज वाली। अब हम क्या करें, अब हम T को हाई कर दें। T को जब हम हाई कर दें तो इस केस में हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है, टॉगल होता है। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टॉगल यहाँ पे सिर्फ किस केस में ऑकर होगी, जब हम T फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा T फ्लिप फ्लॉप। ये T फ्लिप फ्लॉप मैंने नॉर से बनाया है। नॉर और नैंड में एक डिफरेंस है, जैसे आपने देखा होगा
ये देखिए, ये जैसे हम नैंड गेट से कोई भी फ्लिप फ्लॉप बना रहे थे, तो जब हम क्लॉक लेते हैं तो क्लॉक के साथ भी हम नैंड गेट यूज़ करते हैं। बट यहाँ देखिए, जब हम नॉर से बनाते हैं तो नॉर के साथ हम एंड गेट यूज़ करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को नॉर से भी बना सकते हैं और नैंड से भी बना सकते हैं। तो ये 4 तरह के हमारे फ्लिप फ्लॉप थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप।